Good morning, class 10. We are going to continue the first chapter in history, that is rise of nationalism in Europe. So, in earlier videos, I had discussed about this chapter and I had talked about how the nationalism grew in different parts of Europe. I had talked about the European vision. Most of the people of Europe thought about an ideal society, thought about a nation state. They wanted a separate, independent country in which they have got the real powers, they have got the independent powers to rule their country. Because most of the Europe was ruled by various dynasties, various type of ruling kingdoms, and most of the country were not independent. They were part of some of the empires, and most of the people of those countries wanted independence. Like the French Revolution took place in which the ideas of liberty, integrity, fraternity, those ideas were given by the French revolutionaries. The idea of fatherland, the idea of citizens, the idea of motherland, for example, Marianne, Germania, such types of portraying female figures, such type of things were used by different revolutionaries to nationalize the sentiments for the country, to increase the love for the nation in different parts of the Europe. So we had talked about the unification of Italy, in which Giuseppe Mazzini was one of those leaders who formed different secret societies like Young Europe and Young Berlin, Young Europe and Young Italy in various parts of Europe, and took some of the members from different countries like France, Italy and Germany in his secret societies. He had to form those secret societies because he was sent to exile for attempting a revolution in Bulgaria. And after that, we had talked about the age of revolution from 1830 to 1848. We worked on the topic of Greek Revolution. Greek Revolution, what happened in Constantinople, in areas of Constantinople, the Ottoman Turks were ruling over there, and most of the European civilization or the Greek civilization was dismantled, and most of the countries wanted to re-establish that Greek civilization, and for that it was needed that the nationalist sentiments or the love or the romantic feelings for the nation should be redeveloped, and that could only be done by the folk tales, folklore, folk dances. तो कल्चर पूरी तरीके से रीस्टैब्लिश करना था लोगों के अंदर, वो वापस वो कल्चर फिर से जगाना था। वो कल्चर कैसे जगाया जा सकता था? अगर आप कोई अपने नेशन की कोई सिंबल्स यूज करें, जैसे कोई फ्लैग यूज करें या कोई नेशनल डांस यूज करें, कोई नेशनल ड्रामा यूज करें, या अपनी कोई भी ऐसी चीज जो आपके कल्चर से जुड़ी हो, तो ग्रीस के लोगों को रेवोल्यूशन के लिए तैयार करने के लिए जरूरी है था कि उनके अंदर वो लव फॉर द नेशन जगाना था। उसी फीलिंग को रोमांटिसिज्म कहा जाता है। तो रोमांटिसिज्म की फीलिंग डेवलप करने की कोशिश ग्रीक रेवोल्यूशनरीज ने की। The development of nationalism did not come about territorial expansion. Culture played an important role. Culture played an important role in nationalism. For example, if we are living in India, हमारे देश के जो भी इंडियन रेवोल्यूशनरीज थे, वो बहुत सारे नेशनलिस्ट सिंबल्स यूज करते थे, जैसे तिरंगा यूज करते थे और अपना जो भी राष्ट्रगान यूज करते हैं और जो भी राष्ट्रगीत यूज करते हैं। ये सब क्या करते हैं? ये हमें नेशन से जोड़ते हैं, हमारे अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग्स डेवलप करते हैं। तो वैसे ही ग्रीक के जो लोग थे या ग्रीस के जो लोग थे, जो ग्रीक्स कहे जाते थे, तो उन लोगों के अंदर वो कल्चर को दोबारा याद दिलाना उनको कि हमारा कल्चर डिफरेंट है, हमें अपने कल्चर के लिए लड़ना है, हमें हमारे कल्चर को खत्म कर दिया गया, हमें अपने कल्चर के लिए विद्रोह करना पड़ेगा, वरना हमारा कल्चर पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। क्योंकि 5 सेंचुरीज से ऑटोमन टर्क्स वहां पे रूल कर रहे थे, इस वजह से पूरी तरीके से वहां पे उनका कल्चर तबाह कर दिया गया। उस कल्चर को रीस्टैब्लिश करने के लिए जरूरी ये था कि वो फीलिंग दोबारा डेवलप कराएगा। तो बहुत सारे जर्मन फिलोसफर्स ने ये काम किया। फोक डांसेस, फोक टेल्स, फोक पोएट्रीज, ये सारे कविताएं, डांसेस, ड्रामास, इसके थ्रू लोगों के अंदर वो जागृति पैदा की गई कि हाँ ये हमारा कल्चर है, ठीक, हमें अपने इस कल्चर को फिर से दोबारा जीवित करना है, ठीक। The emphasis on vernacular language and the collection of local folklore was to discover। तो सबसे
ज़्यादातर हम लोग चीज़ों को जानते हैं टेक्स्ट से या बुक से हम लोग बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं। तो अगर बुक्स ही हमारी देश की बुक्स ही दूसरे पराये देशों के लैंग्वेज में होगी तो फिर हम लोग कहाँ से अपने कल्चर से अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। तो ज़रूरी है कि जो बुक्स हों वो हमारी वर्नाकुलर लैंग्वेज यानी हमारी खुद की देश की लैंग्वेज में। इसीलिए जो भी ग्रीक फिलोसफर्स थे उन्होंने ग्रीस की ओन लैंग्वेज में बुक्स को छापना स्टार्ट किया और उसमें अपने कल्चर से रिलेटेड बातें लिखी ताकि लोग उसके बारे में पढ़ें और दोबारा अपने कल्चर से अपने आप को रिकनेक्ट कर सकें। खासकर जिस पार्ट पे ग्रीस के लोग रहते थे, क्योंकि पूरी तरीके से ग्रीक सिविलाइजेशन थी वो अलग अलग डायनेस्टीज में डिवाइड हो गई थी। अलग अलग एम्पायर में ग्रीस के लोग चले गए, कोई पोलैंड के एम्पायर में चला गया था, कोई ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर में चला गया था। तो इस तरीके से अलग अलग एम्पायर में डिवाइड होने की वजह से ग्रीस के लोग बहुत डिवाइडेड हो गए। उनको रिकलेक्ट करना, फिर उनको एक ग्रीस एक नेशन स्टेट के लिए अपने रिवोल्यूशन करने के लिए जागृति पैदा करना एक बहुत बड़ा टास्क था। ठीक है, लैंग्वेज टू प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट। तो लैंग्वेज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, लैंग्वेज आपको कनेक्ट करती है। अगर आप किसी दूसरे देश में जाते हैं तो आपकी सबसे डिस्टिंक्ट कल्चर क्या है? आपकी लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर विजिटिंग ब्रिटेन, हाउ यू कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंडियन? व्हेन यू स्पीक हिंदी, you will be recognized that you are belonging from an Indian country or you are belonging from some part of the subcontinent. Okay, तो लैंग्वेज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपको आइडेंटिफाई करना। पोलैंड के लोगों ने भी यही किया। पोलैंड के कुछ लोगों को जबरदस्ती रशियन एम्पायर में इंट्रोड्यूस कर दिया तो रशियन बोलने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन वो थे तो पोलिश भाषा बोलते, तो उन्होंने पोलिश भाषा में वार्तालाप स्टार्ट कर दिया और पोलिश भाषा में ही उन्होंने बुक्स पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया, जिससे वो पोलिश लोग आपस में एक दूसरे को रिकनेक्ट कर सके। अब रिवोल्ट्स का बहुत बड़ा कारण क्या बना? हंगर और हार्डशिप। हंगर एक बहुत बड़ी चीज है जो इंसान से कुछ भी करा सकती है। 1830s के बाद पॉपुलेशन यूरोप की इतनी तेजी से बढ़ी कि ग्रेन्स की रिक्वायरमेंट कम हो गई। अब ग्रेन्स उतना नहीं था, तो ग्रेन्स ना होने की वजह से एक बहुत बड़ा टास्क था कि किस तरीके से जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको फीड किया जा सके। इससे क्या हुआ? ग्रेन्स की कमी की वजह से बहुत सारे लोग जो हायर प्राइसेस ऑफ ग्रेन्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ज्यादा पॉपुलेशन होगी और वस्तु कम होगी या सप्लाई कम होगी, तो इससे क्या होगा? प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो इससे वही लोग उस पर्टिकुलर ग्रेन के प्राइसेस को अफोर्ड कर सकते हैं जिनके पास अच्छा पैसा है। इससे क्या हुआ? जो गरीब तबका था उसको ग्रेन्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे, इस वजह से उनको बहुत ज्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ रही थी और हंगर उनके पूरे सोसाइटी में फैल गया था। बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे क्योंकि इकोनॉमिक हार्डशिप्स थी, इकोनॉमिक कंडीशन यूरोप की बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। एरिस्टोक्रेसी भी स्ट्रगल कर रही थी, एरिस्टोक्रेसी भी धीमे धीमे बहुत सारी कंट्रीज जो है वो इंडिपेंडेंस गेन करने लगी थी। द राइज ऑफ द फूड प्राइसेस ओवर अ ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लेड टू वाइड स्प्रेड पॉपुलेशन। तो बैड हार्वेस्ट हो जाता था कभी कभी, क्योंकि उस टाइम पे जो भी फार्मर्स थे वो पूरी तरीके से नेचुरल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड थे। नेचुरल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होने की वजह से उस समय उन्हें पूरी तरीके से वो चीजें प्राप्त नहीं हो पाती थी। तो अगर बैड हार्वेस्ट हो जाता था, अगर उनकी क्रॉप्स फेल हो जाती थी, तो इन दैट पर्टिकुलर केस दे वर नॉट एबल टू फीड देयर फैमिलीज। ओके, सो व्हिच लेड टू अ वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म इन टाउन्स एंड द कंट्रीज। The year 1848 was one such year. Food shortage and widespread unemployment brought the population of Paris out of the woods. तो पेरिस की पॉपुलेशन जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी, क्योंकि आपको मालूम है फ्रांस में लुइस 16 का रूल था, लुइस 16 ने बहुत ज़्यादा टैक्सेस इंक्रीज कर दिए, तो 1848 आते आते वहाँ पे बॉर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर कर दिया गया। तो बॉर्बन डायनेस्टी के जो भी न्यू किंग थे लुइस फिलिप, उन्होंने भी वापस वही टैक्सेस इंट्रोड्यूस करने की वजह से फिर से वही जो पुअर पॉपुलेशन थी उसके ऊपर टैक्सेस का बर्डन डाल दिया गया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा उनके पास मनी नहीं बच पाती थी और हाई प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स होने की वजह से उनको हंगर और हार्डशिप फेस करना पड़ता था। इस वजह से उन्होंने पेरिस की रोड्स पे रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया। वो घर के बाहर निकल आया और घर के बाहर आकर उन्होंने विद्रोह। अब उनके पास कोई ऑप्शन तो था नहीं, या तो वो भूखे मरते या अपने लिए लड़ते, वही ऑप्शन थे। भूखे मरने से अच्छा है कि कुछ प्रयास करें, शायद थिंग्स चेंज हो जाए, शायद अब फ्यूचर जनरेशंस के लिए कुछ बदल जाए। अगर हम आज लड़ लेते हैं तो हो सकता है फ्यूचर जनरेशंस को तो अच्छा भविष्य देखना नसीब हो जाए। हम लोग तो चलो मर भी जाए, लेकिन आगे के भविष्य के लिए तो ठीक हो। इसी वजह से उन्होंने रेवोल्यूशन करना ज़्यादा सही समझा कि रेवोल्यूशन करेंगे तो शायद कोई चेंज हम ला सकें।
Earlier in 1845, weavers in Silesia had to lead a revolt. अब देखिए वीवर्स के साथ भी अन्याय किया गया। वीवर्स को क्या किया? वीवर्स को टेक्सटाइल बनाने का ऑर्डर तो दे दिया जाता था, लेकिन उनके पेमेंट्स अच्छे नहीं दिए जाते। उनको बड़े बड़े ऑर्डर दे दिए जाते, कम समय में ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस करके देना है, लेकिन उनके पेमेंट्स को रिड्यूस कर दिया जाता है। जो भी प्रोड्यूसर्स थे वो नहीं चाहते थे ज़्यादा पेमेंट करना वीवर्स को, वो अपना पैसा बचाना चाहते थे। तो वीवर्स को कम पैसा देने की वजह से वीवर्स बहुत ज़्यादा अपने आप को डिप्राइव्ड फील कर रहे थे। इस वजह से सिलेसिया में रिवोल्ट होने लगा। वहां पे कॉटन वीविंग एक बहुत बड़ा ऑक्यूपेशन था। On 4th June 2 PM, a large crowd of weavers emerged from their homes and marched into the pairs up to the mansion of the contractor demanding higher wages. तो अब क्या करेंगे वो? उन्होंने एक ट्राई किया कि वो कॉन्ट्रैक्टर जो उन्हें वीवर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया करता था, बड़े बड़े गुड्स प्रोड्यूस करने के कॉन्ट्रैक्ट दिया करता था, टेक्सटाइल प्रोड्यूस करने के कॉन्ट्रैक्ट दिया करता था, उसके यहाँ एक दिन वो लोग उसके मैंशन पे चले गए और वहाँ पे उन्होंने हायर वेजेस की डिमांड करने का एक हड़ताल करने लगे और हायर वेजेस की डिमांड करना स्टार्ट किया। और जब वो नहीं माना, उसके कान पे जू नहीं लगी, तो उस लोगों ने उसके घर पे पत्थर फेंकना स्टार्ट कर दिया और उसके घर पे घुस गए। ठीक है, हमला कर दिया। कॉन्ट्रैक्टर फ्लड विद हिज फैमिली टू अ नेबरिंग विलेज व्हिच हाउएवर रिफ्यूज्ड टू शेल्टर सच अ पर्सन। तो अब कॉन्ट्रैक्टर के पास क्या ऑप्शन रह गया था? वो घर छोड़कर अपनी फैमिली के साथ भाग गया। इतने सारे रिवोल्यूशनरीज को कैसे फेस कर पाएगा? इतने सारे रिवोल्यूशनरीज को कैसे वो फेस कर पाएगा? तो उसने सोचा कि यहाँ से भाग जाना ही ज्यादा अच्छा, तो वो पीछे के दरवाजे से वहां से भाग गया और फिर बहुत समय तक नहीं आया। दूसरे विलेज में जाने की कोशिश की, लेकिन दूसरे विलेज के लोगों ने भी उसे कोई शरण नहीं दी, क्योंकि वो एक बुरा आदमी था। उसने लोगों के साथ अत्याचार किए थे, उसने लोगों को अच्छे वेजेस नहीं दिए। ठीक है, तो और 24 घंटे बाद जब वो लौट के आया तो उसने अपने साथ आर्मी लेके आया और आर्मी को उसने उन लोगों के ऊपर गोली चलाने का हुक्म दे दिया, जिसकी वजह से 11 लोग वहीं पे मारे गए। रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। लिबरल्स मतलब वो लोग, लिबरल्स कौन होते हैं? लिबरल्स दोज हु वांट फ्रीडम। लिबरल्स ये टर्म बना है लिबर्टी। लिबर्टी मीन्स फ्रीडम। तो जो लोग फ्रीडम चाहते हैं उनको लिबरल्स कहा जाता है। तो अब हम बात करेंगे रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, और उस केस में हम सबसे पहले बात करेंगे जर्मनी की। जर्मनी में 1848 में जो एजुकेटेड मिडिल क्लासेस थे, जो बिजनेसमैन थे, मर्चेंट्स थे, लॉयर्स थे, जो एजुकेटेड लोग थे, अब उनको ये लगा कि हमें कोई ना कोई पॉलिटिकल चेंज लाने की जरूरत है। उसके लिए जरूरी है कि हम कुछ ना कुछ ऐसा काम करें जिससे हम मोनार्की की पावर्स को रिड्यूस कर सकें। क्योंकि जर्मनी में मोनार्क रूल था, तो मोनार्क की पावर को रिड्यूस करने के लिए जरूरी है कि हम कोई ना कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना पड़ेगा जो मोनार्क की पावर को लिमिट कर सके, या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इस्टेब्लिश कर सके जर्मनी में। तो उसके लिए इन जर्मन रीजन्स अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन whose members were मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स। मिडिल क्लास मैंने भी बताया आपको। और 18 में 1848, अब ये बहुत बड़ा इंसिडेंट है जर्मनी की हिस्ट्री में। 18 में, आज ही के दिन, आज 18 में है, 18 में को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज ही का एक हिस्टोरिक दिन था। 18 में 1848 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, यानी जो सेंट पॉल्स चर्च था, एक चर्च था वहां पर, उसका नाम था सेंट पॉल्स, जर्मनी में। तो यहां पर एक पार्लियामेंट बैठी जिसमें 831 रिप्रेजेंटेटिव्स थे एजुकेटेड मिडिल क्लास। ये सारे रिप्रेजेंटेटिव्स वहां बैठकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने लगे जर्मनी का, जो कि मोनार्क की पावर्स को लिमिट कर दिया। ठीक है, किसकी पावर? फ्रेडरिक विल्म द किंग ऑफ प्रूशिया, हु वाज द रूलर ऑफ जर्मनी एट दैट टाइम। ही रिजेक्टेड इट एंड जॉइंड। अब लेकिन ये जो असेंबली थी ज्यादा कुछ कर नहीं पाई। इस असेंबली में विमेंस भी थी, लेकिन विमेंस सिर्फ गैलरीज में खड़े होकर वॉच कर रहे थे, उन्हें अधिकार नहीं थे रिप्रेजेंटेटिव बनने का, उन्हें सिर्फ वॉच करने का अधिकार था। तो 831 रिप्रेजेंटेटिव्स कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन उनकी कोशिश कामयाब इसलिए नहीं हुई क्योंकि जो प्रूशियन किंग था, जो जर्मनी का रूलर था, बहुत ज्यादा पावरफुल था। पावरफुल होने की वजह से उसने दूसरे मुनास की हेल्प लेकर उनके ऊपर इतना दबाव डाला रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर कि उन रिप्रेजेंटेटिव्स को अपने
जो भी डिमांड थी उसको वापस लेकर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को खत्म करना पड़ा, अमेंडमेंट करना पड़ा। ठीक है, तो असेंबली वॉज फोर्स्ड टू डिसबैंड। तो ये तो इतनी हमने बात कर ली फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जर्मनी और इटली कैसे बने। तो इतना जरूर पढ़ें अच्छे से। थैंक यू क्लास।